Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Okay, so as you all know that we can say that we have ended this chapter of atomic structure, but we are left with only a very little thing for which we have a space over here at the end as well. That is actually the electron शेल डायग्राम्स ना। अच्छा, उसमें कुछ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वाया फॉर्मिंग दीज डायग्राम्स. And then we can say that we have although ended the chapter, and I'll be probably doing like some questions along with you all today a bit, so that you can get a bit of an idea of what we see in the exam regarding this chapter. And then I'll be providing you some of the questions to do for homework, because we have obviously our regular next class is although on Monday, but as you all know that I'll be taking one extra class this week, the pending one, and but I'll be obviously giving you the deadline for Monday to submit me those questions of homework. सर कौन से क्वेश्चन? अभी मैं दूंगा बेटा, सेंड करूंगा मैं. बुकलेट है पूरी, उसमें से मैं आई मार्क एंड आई जस्ट गिव इट टू ऑल ऑफ यू. पहले तो हम खुद करेंगे थोड़े से, और फिर उसके बाद जो है आई गिव यू एमसीक्यूज और थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, इजी होंगे. So first of all, I'll just go on with a quick recap of all what we have done here in atomic structure up till now, as this is the end of our very first chapter, and obviously, as we only do not have done this chapter in discussions, we also have also done some of the other things as well. Like in the first class, we discussed about the whole syllabus overview, and then हमने साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आई ऑब्वियसली बी प्रोवाइडिंग यू ऑल विद दैट प्रॉपर नोट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल, so that all of you can go through them, and you can, if you have any questions regarding them, you can ask me, because obviously we haven't done that chapter, as it is not necessary for us to do states of matter. That is why we jumped on directly to the atomic structure, and now we'll be moving forward then after doing some of the questions and then the test as well. Okay, so atomic structure में बेटा सबसे पहली चीज जो हमने की थी, that was the discussion coming from matter directly, and here we discussed about the states of matter and all. सो मैटर बेटा कोई भी चीज है जो कि आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर आ रही है, आपके इर्द गिर्द है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कोई मास है, ठीक है. देन एलिमेंट जो है वो मैटर का ही एक फॉर्म है. 118 नोन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो अब तक हमें पता चल चुके हैं, जिनके बारे में डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि और उन्हीं एलिमेंट से हर चीज कहीं ना कहीं बनी हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं. 118 known elements which are there in the periodic table, arranged in the increasing number of protons. ठीक है. अच्छा खैर, उसकी तरफ तो हम आएंगे ही, बट एटम की तरफ आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग ऑन इनटू more detail of the subatomic particles. Atom is something which is like the smallest particle which is indivisible. मतलब एक एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या आप कह सकते हो कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम होता है, ठीक है, जो कि फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है. ऑल्दो उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं विच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. द नेम्स आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. द सिंबल्स आर हेयर, द चार्जेस आर हेयर, द masses are here, and the positions of them are also here. The position then takes us towards the structure of the atom itself, the atomic structure you can see over here, जिसमें आप देख रहे हो कि you have the protons and neutrons inside this nucleus, and in the atom there are electrons orbiting इन दी शेल्स. ठीक है बेटा. उसके बाद कुछ फर्दर एग्जांपल्स वगैरह हमने की थी, एंड देन वी वेंट ऑन टुवर्ड्स सम ऑफ द वेरी few basic definitions of proton number and mass number. ठीक है. proton number is exactly the number of protons in an atom of an element, and that is always equal to the number of electrons for an atom. ठीक है.
जिसकी वजह से ही एटम न्यूट्रल होता है। मास नंबर इज द कंबाइंड नंबर और द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है बेटा। इसको और क्या कहते हैं मास नंबर को बेटा? न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। देन वी वेंट टुवर्ड्स द केमिकल सिंबल विच इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। इसमें जो भी नंबर आपका बड़ा नंबर होगा, वेदर इट इज रिटन एट द टॉप और एट द बॉटम, द बिगर नंबर is actually the sum of protons and neutrons, which is the mass number, atomic mass, or the nucleon number, whatever you want to call it. ठीक है। And the smaller number, whether it is written at the bottom or the top, is the proton number or the atomic number. Proton number का ही दूसरा नाम होता है atomic number, क्योंकि elements arranged होते हैं in the increasing number of protons in the periodic table, और यही इसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी पहचान होती है, इसका रोल नंबर होता है एक तरीके से। एक्स इज द केमिकल सिंबल, जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम यहाँ देखते हैं। केमिकल सिंबल जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एच है, हीलियम का एच ई है, लिथियम का एल आई है। कुछ एलिमेंट्स के लिए उनका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, कुछ के लिए फर्स्ट सेकेंड होते हैं, कुछ के लिए फर्स्ट और थर्ड होते हैं। इस तरीके से सिंबलाइजेशंस होती हैं। और अगर किसी भी एलिमेंट के लिए आपको न्यूट्रॉन्स का पता लगाना है, तो आप ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया। देन वी वेंट ऑन to this very important question, which I have seen quite a few times, and you might see it in your exam as well, that why an atom is electrically neutral. In an atom, ऑब्वियस है ये कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वो एटम है। और एटम के अंदर जब दोनों चीजें बराबर हैं तो पॉजिटिव चार्जेस विल बी कैंसलिंग आउट दी नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। देन वी वेंट ऑन टूवर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, विच एक्चुअली मीन्स सेम प्रोटॉन्स। आइसो का मतलब सेम, प्रोटॉन्स होता है, टोप्स का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच कॉजेज अ चेंज इन देयर मास नंबर। ठीक है। ये डेफिनेशन को हमने पढ़ा है, इसको बहुत डिटेल में हमने देखा है, ठीक है, डिस्कस किया है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू और कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आप थरली चारों बातों को देख सकते हो। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। सेम प्रोटॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन, देन विच कॉजेज अ चेंज इन मास नंबर। ठीक है। जी बेटा रायन, आई विल बी टेलिंग यू लेटर अबाउट इट directly on your WhatsApp. Okay, so coming up next towards this isotopic abundance thing, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगेन आई नो इट्स वेरी रेलिवेंट। रायन ने इसी टाइम पे ही ये क्वेश्चन पूछा है कि असाइनमेंट जो है आपको, आपकी जो मैंने दिए थे, छोटा सा ही था, 3-4 क्वेश्चंस देयर वर फॉर द एवरेज मास कैलकुलेशन, वो अभी तक बताए नहीं है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने बेटा मुझे सेंड किए हैं पहले से, उनको मैंने डायरेक्टली वहीं पर ही उनके आंसर्स बता दिए हैं, दैट विच आर करेक्ट। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे थोड़ा सा अभी रिसेंटली सेंड किए हैं, और कुछ को मैं देख चुका था बट आई wasn't एबल टू लाइक टेल देम, सो आई विल बी टेलिंग देम ऑल अबाउट इट। ठीक है। ओके बेटा। सो नेक्स्ट इज दिस आइसोटोपिक अबंडेंस डिस्कशन, जिसकी अभी बात भी की थी मैंने। ठीक है बेटा। सो आइसोटोपिक अबंडेंस बेटा होती क्या है? आइसोटोप तो पता चल गया आपको, अबंडेंस का मतलब होता है कि वो चीज कितनी अवेलेबल है, कितनी ज्यादा मौजूद है, कितनी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑल द आइसोटोप्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। और इसको हमें क्यों जानना जरूरी होता है? बिकॉज इफ यू नो द आइसोटोपिक अबंडेंस फॉर एनी element, then you will be easily able to calculate the average mass of that element। ठीक है बेटा। अब यहां पर आपके पास क्लोरीन के दो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। ठीक है ना, 25% वाला एक आइसोटोप है और एक
75% वाला आइसोटोप है, ये मतलब 25% अबंडेंट है और ये 75% अबंडेंट है। देन वी वेंट ऑन टूवर्ड्स दिस फॉर्मूला विच आई जस्ट रोट इट फॉर योर ईज, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि अगर दो आइसोटोप्स हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो, so what is the actual formula, what is the actual way for calculating the average mass? तो बेटा आइसोटोप का जो भी मास है उसे मल्टीप्लाई करना है बाय इट्स अबंडेंस, दैट इज प्रोबेबली गिवन इन द परसेंटेज, देन यू ऐड this with the other isotopic mass into the percentage and so on for if there are like more than two isotopes, थ्री हैं, फोर हैं, फाइव है, और टोटल जो abundance है उसे हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज एक्चुअली 100 इन दिस केस एंड वुड बी इन एनी ऑफ द परसेंटेज बेस्ड केसेस। ठीक है, और इससे हमने बेटा एवरेज मास कैलकुलेट किया। और इससे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने हर दफा आपको बताई है, आपने नोट किया होगा, नहीं भी किया हो तो इट्स फाइन, मेरी बेटा कोशिश यही होती है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, वेदर इट टेक्स टाइम, बट एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड ए टू जेड, नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ठीक है, तो यहां पर ये एक और चीज मैंने आपको बताई है, इस तरह से लाइंस फॉर्म करके, ड्रॉ करके, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाता है। अगर आपको एवरेज मास पता है और परसेंटेज नहीं भी पता है, तो एटलीस्ट आपको एक बात का अंदाजा उस मास से हो जाएगा कि कौन सा वाला आइसोटोप जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है। आप देख सकते हो दिस इज 75% अबंडेंट, तो इसलिए जो एवरेज मास का हमारा आंसर आया है क्लोरीन का, दैट इज मोर टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ दिस मास 35। इसी तरह से हमने बेटा बी आर का केस भी किया था, नियोन नियोन का केस भी किया था। हमजा दिस इज द सेम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट कंप्लीटली। एट द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइसोटोप्स। सो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने मेरे साथ ब्रोमीन वाला केस किया था, द एवरेज मास यू गॉट वाज 80, देन द एवरेज मास इन नियोन यू गॉट 20.2 एंड अदर्स वर डन बाय यू इन योर होमवर्क। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर हैं। 80 इज द आंसर, द सेंट्रल वन। इससे पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, 20.2 इज वेरी मच क्लोजर टू इट। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग वी डिड अबाउट आइसोटोप्स वाज द प्रॉपर्टीज। बट आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी, बिकॉज आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो सेम रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं एलिमेंट के एटम्स के अंदर, देयरफॉर उनका केमिकल रिएक्शन करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, केमिकल बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती हैं। देयरफॉर आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने से मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, और मास नंबर डिफरेंट होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। कैसा चेंज आ सकता है बेटा? डेंसिटी का डिफरेंस हो सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे हमारा आइसोटोप्स का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, एंड देन इन द लास्ट क्लास वी एक्चुअली discussed about the electron shells, the principal quantum number, and furthermore the electronic configuration was also discussed. तो बेटा इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में हमें पता चला था अबाउट दिस ऑल, आफ्टर दिस ऑल डिस्कशन, के पहले शेल में हमारे पास फ्रॉम दिस फॉर्मूला विच वी हैव ओवर हेयर 2n square, we we found out that the first shell can hold up to only two electrons, the second shell can hold up to eight electrons. We must know the names of them as well. Second one, the first one is called duplet, and the second one is called the octet. ठीक है, the third shell can hold up to 18 electrons, but it does end up holding 8 electrons only, because it is enough satisfied, it gets enough stable when it achieves 8 electrons. And that same thing is being reflected in our electronic configuration thing. And apart from that, we discussed in detail about the energies of the shells. पहले शेल की एनर्जी बेटा सबसे कम होती है,
दूसरे की उससे ज्यादा होती है, तीसरे की उससे ज्यादा होती है। एज मच दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, their energies will increase because the attraction from the nucleus decreases. And after that, last thing was the electronic configuration, which tells us for any element कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, मतलब वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, एंड उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे पता चलता है कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. So this was everything up till here in this chapter, and now we will be doing some examples of the shell diagrams. But before moving on towards that last part and then on towards the questions, I would just like to have a final word by all of you about this chapter. कि इसमें कोई भी चीज़ अगर unclear है तो you can still ask me. अब्दुल्ला, अबीरा, आयशा, ईमान, हमना, Rayan, Umar, क्लियर Sara. सर। I'm currently not asking those who have recently joined me or have like been taking my classes from the past 1 or 2 classes. But obviously, if you are also getting it, it's very good. Otherwise, I have like the recordings for all of you, and you can cover up those to understand what is done before properly. ठीक है बेटा. किसी को भी इशू हो मेरे एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आप मुझे बता सकते हो. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वेरी लास्ट थिंग, दैट इज द शेल डायग्राम. ओके ओके बेटा हमजा, आई होप दैट इज क्लियर. ओके, ठीक है. सो यू कैन गो ऑन विद द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स टू कवर अप दैट प्रीवियस स्टफ एंड देन कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस. अच्छा बेटा, ये बड़ी सिंपल सी चीज है वैसे तो, बट इज जस्ट टू टेल यू अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, which is also not very much, you can say, considerable in O levels or IGCC, but if you just have an idea of it, that will be fine for us. So सबसे पहले बेटा बात करते हैं हाइड्रोजन की अगर. ठीक है. So hydrogen is 1 and 1. ठीक है. So hydrogen has just one electron, as you all know, and if we're going to draw that shell for hydrogen, we'll be just showing one electron over here like this. ठीक है बेटा, ऐसे ही होगा for hydrogen. ठीक है बेटा. This is for hydrogen. ठीक है. Then we have from the first period helium. 4 and 2. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 2 हैं. तो सिंपली हम और यहाँ बस हम एक और को ड्रॉ कर देंगे बेटा, HE कर देंगे इसको. दिस इज हीलियम. ठीक है बेटा. अब इनके पास तो सिर्फ एक ही शेल मौजूद था. दिस इज हाउ यू मेक द शेल डायग्राम्स. देन वी हैव लिथियम, फॉर एग्जांपल Li,
Li, द कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी बेटा, पहले तो मैं आपको ये लिख के दे दूं जिससे आपको भी पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन का, 3 इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, पहला शेल तो इसके पास होगा जो कि बिल्कुल ही कंप्लीट होगा, बट इट विल बी ऑल्सो हैविंग another shell which will be having 1 electron. This is Li like this। ठीक है बेटा। अच्छा, लिथियम के बाद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, वो नीचे भी कर सकते हैं वैसे थोड़ा सा, ठीक है बेटा। लिथियम के बाद वी हैव एक्चुअली बेरिलियम 2,2। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट इंस्टेड ऑफ 1 are going to be 2 electrons like this। ठीक है, and this is B E, this is beryllium। ठीक है, अच्छा आफ्टर दिस, ये इतना सब क्यों लिखने बैठूंगा मैं इससे शॉर्ट कर दूंगा, जितना स्पेस सेव हो सके, जितना टाइम सेव हो सके। दिस इज एक्चुअली, सॉरी, बोरॉन। ठीक है, दिस इज बोरॉन 11,5, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2,3। ठीक है, एंड दिस इज बी। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एक छोटी सी चीज आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी आपको। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम प्लेस करते हैं बेटा, तो 1 बाय 1 जब हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से प्लेस करते हैं कि पहले एक जगह पे एक सिंगल आ जाता है, ऐसे जैसे अभी आपके सामने ही आता हुआ आपको नजर आ रहा है, वैसे एक सिंगल आ जाता है। आई बिलीव थोड़ी सी स्पेस अगर हम ले जाएं लेफ्ट पे, बट ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा होना हो जाए। आफ्टर बोरोन वी हैव कार्बन। कार्बन इज बेटा सी। ठीक है, 12, 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, 2,4 एंड गोइंग टू बी कार्बन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले क्या करते हैं बेटा, पहले हम एक पेयर बनाते हैं, ये वाला पहले शेल में वो तो खत्म हो गया, दूसरे शेल में पहले एक पेयर बनाया, फिर एक, और फिर एक ऐसे सिंगल। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है ना। अगर इनकेस आप ये नहीं भी फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस तरीके से जनरली इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 सिंगल सिंगल आ रहे होते हैं। आफ्टर कार्बन वी हैव नाइट्रोजन। अच्छा, उसके बाद भी जो है ना हम लोग एक और भी ले सकते हैं आगे के लिए, ऑक्सीजन।
देखिए मैं फिर चेंज करूंगा। दिस इज 14 एंड 7। दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, विच इज 2,5। तो ये अब क्या होगा बेटा, इधर तीसरा ऐसे आ जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन 2,6। दिस इज जस्ट इन ओ। इतना हो गया तो इतना अच्छा वो बना ही लेते हैं। 16 and 8, 2,6। तो 2 के बाद यहाँ पर 1 2 3, और ये फिर उसके बाद हो जाता है बेटा ऐसे डबल ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर भी 3 हो गए, एंड देन 2 more केसेस ऑफ ये आपने 3 सिंगल कर दिए बेटा, ये डबल हो गया, और अब ये भी डबल हो गया, जस्ट लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज सिंगल अलोन, ठीक है। एंड दिस इज फॉर नियॉन एन। ई भी आता है आगे, थोड़ी सी जगह दे देंगे उसको आने के लिए। दिस इज नियॉन विच इज 20 and 10। दिस इज 2,8, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है बेटा कंप्लीट। सेकेंड शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है कंप्लीट। These are actually how you are forming the shell diagrams, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसकी स्पेस को यूज करते हुए इस तरह से भी किया जा सकता है। I think that won't be a good idea. These 8, I am changing the color फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। पहले जो दो हैं बेटा वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये जो है हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद भी हम फ्यू एग्जांपल्स वी कैन डू, लाइक सोडियम इफ वी हैव, ठीक है। अब क्या है, अब अगर आगे एग्जांपल्स हम नहीं भी करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमें फिलिंग करनी है। लाइक वन, एक पेयर आ गया पहले, फिर 1 2 3 1 2 3, पहले तीनों सिंगल होंगे और फिर दोनों तीनों 1 बाय 1 पेयर होते जाएंगे। सो इफ वी आर यूजिंग सोडियम एज एन एग्जाम्पल इनटू दिस,
एन ए बेटा 23 हो गया, और हो गया 11। ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम बेटा? 2 8 1। अब इसके पास कितने शेल्स हैं बेटा? 3 शेल्स हो गए। 2 8 1। मैंने कल ही बताया था आपको, परसों आई गेस, परसों आई नो, कि बेटा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दो बातें बता देती हैं, कौन सा पीरियड है कौन सा ग्रुप है। पीरियड नंबर है 3 बिकॉज देर आर टोटल ऑफ 1 2 and 3 शेल्स, एंड ग्रुप नंबर है 1 बिकॉज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज 1। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, नियॉन तो एज इट इज हम उठा देंगे, क्योंकि वो 2 शेल्स तो बेटा आएंगे ही ना उसमें भी, दैट इज ऑब्वियस। 2 शेल तो आएंगे, बट अब हमारे पास बेटा एक और शेल भी आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एक इधर आ गया, ठीक है। एंड देन इन द सेम वे अब क्या हो गया, अगर हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो इधर 2 आ जाएंगे बेटा। मैग्नीशियम अगर हम ले लेंगे तो इधर 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर भी एक आ जाएगा, फिर सिलिकॉन में यहाँ पर भी एक आ जाएगा, फॉस्फोरस में यहाँ पर भी एक आ जाएगा, सल्फर में ये डबल हो गए, क्लोरीन में ये भी डबल हो गए, और आर्गन में ये पूरा शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इफ वी मूव ऑन टू द फोर्थ वन, तो फोर्थ वाले की एग्जांपल कर लेते हैं। फोर्थ में भी हम अगर बेटा सोडियम के ही ग्रुप का एक कोरिस्पोंडिंग मेंबर लेते हैं, दैट इज पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम, ठीक है बेटा। पोटेशियम इज के, के के साथ 39 and 19। So the configuration is how much बेटा? 2 8 तो हो गया, उसके बाद 9 नहीं आएगा, बिकॉज यू नो दैट फॉर द थर्ड शेल इवन 8 इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम अमाउंट इट नीड्स। तो 2 8 8 1 पोटेशियम, another member of group 1। how do we know? आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एग्जिस्ट इन फोर्थ शेल, 4 शेल्स होते हैं बेटा इसके पास, तो हम सिर्फ एक शेल और इंक्रीज कर देंगे। So if enlarging, we should directly take the circle, देखो बेटा ऐसे ऐसे आपने वन बाय वन करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, एंड देन वन ओवर है 2
8, 8, 1. This is for potassium. 281 is for sodium. These are a few of the examples. कलर तो फिर हम इसका वही रहने देते हैं, ये चौथे शेल में है तो इसका कलर भी हम डिफरेंट यूज कर लेते हैं बेटा। चलो रेड ले लेते हैं, रेड को यूज ही नहीं करते हैं लेकिन ये रेड बहुत से क्वान्टिटी कर रहा है, मिक्स हो रहा है तो हम ये करवा देते हैं। चलो ठीक है बेटा, दीज आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। ठीक है, ये कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, गो फॉर एनी ऑफ द डार्क, ये चलो ये अच्छा लग रहा है। ओके सो बेटा, इन इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम्स को देखने में, समझने में, इनकी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने में क्या आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी ऑफ द इश्यूज इन फिलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वे। मैंने हर एक इलेक्ट्रॉन को खासतौर पे सेकंड शेल में किया है, ठीक है, ताकि वो आप चेंज देख सको। द मेन थिंग इज द चेंज, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग चेंजिंग ना, ऐसा है बेटा। सो प्लीज टेल मी, हमना, रयान, उमर, सारा, ईमान, आर्यन, आयशा, अबीरा, अब्दुल्ला। ठीक है बेटा, तो प्लीज कोई इशू हो तो डू टेल मी, बता दो मुझे, कोई भी मसला आ रहा है। Okay, beta. So you can see this is a booklet which I'll be giving to all of you separately. And into this, we are going to do some of the questions regarding this chapter of atomic structure. अच्छा, सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं कुछ MCQs की तरफ। इन दिस चैप्टर ऑब्वियसली एज some of the questions are co-related, co-combined with some of the other topics, so we won't be doing them, but we'll be doing the the questions which are completely based on this chapter of atomic structure. So from the given MCQs, the first one which we can attempt over here is question number 3। बेटा ये आपके अपने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। So an oxygen atom contains 8 electrons, 8 protons, and 10 neutrons. What is the nucleon number of this atom? Option A is 8, then B is 10, C is 16, and D is 18. One of you has given your answer as D, and I believe all of you might have an idea that the answer is going to be D, because when we are talking about the nucleon number बेटा, तो न्यूक्लियन नंबर में हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक बार वो आ चुके होते हैं प्रोटॉन्स के तौर पे। न्यूक्लियन नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 8 protons we have, 10 neutrons, so 10 plus 8 is 18. So D is your correct answer for this one। ठीक है बेटा, अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वी हैव a radioactive isotope of carbon has more nucleons than the non-radioactive isotope 12 6। इस क्वेश्चन को जरा गौर से सुनना है। A radioactive isotope of carbon has more nucleons, ये देख रहे हो, इस पे फोकस करना है बेटा, देन द नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ये वाला, यानी ये जो आइसोटोप है आपके पास जिसकी बात हो रही है उसमें इससे ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है, मतलब उसका मास नंबर इससे ज्यादा है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कुड देयर बी इन दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन? कुड देयर बी, या हो सकते हैं, ये कह रहा है। So, beta, for carbon, again, if you don't remember, you have to obviously look back at your periodic table, because it's not the thing कि आपको हर नंबर याद होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए। But we know for carbon, it's obviously given here as well if you don't require it as the periodic table. So यहाँ पर ही given है that 6 is the प्रोटॉन नंबर। तो जो आइसोटोप होते हैं बेटा उसमें प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं, तो इसका मतलब एक तरीका होता है बेटा एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, दैट इफ यू डोंट नो द राइट आंसर फर्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर चांसेस
ऑफ गेटिंग द राइट आंसर यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स ना। तो बेटा प्रोटॉन तो उसमें भी 6 ही होंगे, बिकॉज आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। तो 8 जितने भी आपको ऑप्शंस दे रहा है प्रोटॉन नंबर के, वो हो गए गलत। तो बचे सिर्फ ए और बी ऑटोमेटिकली। अच्छा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं, तो ए और बी में हमारे पास 6 6 का ही सेट है। तो ये तो हम एलिमिनेट नहीं कर सके। बट इफ यू लुक एट ए एंड बी, इन ए न्यूट्रॉन्स आर 6, जो कि इसमें ऑलरेडी हैं, बिकॉज 12 अगर मास नंबर है तो प्रोटॉन्स 6 हैं, तो न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं बेटा। बट ये कह रहा है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, हैज मोर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ज्यादा मास है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कुड बी देयर इन दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप? तो इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप में बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो 6 6 ही होंगे, जो कार्बन के वैसे होते हैं। बट मास नंबर अगर ज्यादा है इस वाले से, 12 6 है, तो उसका मतलब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। दैट गोज विद द ऑप्शन बी। so A is also incorrect, B is our correct option। क्वेश्चन 3 4 में किसी को कोई इशू है बेटा एमसीक्यूज के? प्लीज टेल मी। No, sir. If anyone has any issue, Abdullah, Abira, yeah, I'll obviously tell you बेटा। Anyone else who wants to know बेटा बताओ प्लीज। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने उसमें बताना नहीं है। कोई इशू है तो प्लीज बेटा यू हैव टू आस्क मी। So, question number 4 is requested to be explained. So, I'll obviously explain it. बेटा देखो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, ये बता रहे हैं कि एक कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसमें मोर न्यूक्लियॉन्स हैं, विच हैज मोर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बेटा किसे कहते हैं? हम मास नंबर को कहते हैं। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई कार्बन का कोई और एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसके अंदर मोर न्यूक्लियॉन्स है, किससे? इस नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। यानी कि ये जो आइसोटोप है बेटा, ये आप देख लो, ये इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 12 और 6। ये जो आइसोटोप है ये तो एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। लेकिन जिस आइसोटोप की ये बात कर रहे हैं वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, जिसके अंदर इससे न्यूक्लियॉन्स ज्यादा हैं। मतलब कि मास नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और वैसे भी जब आइसोटोप्स की बात होती है तो प्रोटॉन नंबर्स तो कभी भी चेंज नहीं होते, तो सी और डी तो कैंसल आउट हो गए। 6 प्रोटॉन्स ही होंगे, ए में भी बी में भी, तो ए या बी में से कोई एक आंसर है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी सिमिलर ही हो गए, 6 6 सेम ही हो गए। बट न्यूट्रॉन्स के केस में, एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आइसोटोप, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा? 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन्स है। और जिस आइसोटोप की ये बात कर रहे हैं, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, उसके अंदर इस वाले से ज्यादा मास है, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है। मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो न्यूट्रॉन्स 6 नहीं हो सकते जो कि इस वाले के हैं, उससे ज्यादा होंगे, दैट इज 8। सो बी इज आर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इज इट क्लियर नाउ? ओके, ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी खैर हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो पार्टली डिफरेंट। नहीं, दिस इज समथिंग, सम थिंग्स आर मिक्स्ड, या दिस वन वी कैन डू। 8 वी कैन डू, ये आप लोग मुझे बताओगे बेटा। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, उसी से रिलेटेड है ये। वी आर currently at question number 8। I'm not sure if it's being seen on the screen due to a bit lagging। We are actually doing question number 8, and you all can, if you all can see it on the screen, you have to tell me the answer। Naturally occurring bromine has a relative atomic mass of 80 and consists entirely of two isotopes of relative atomic masses 79 81। ये हमने किया हुआ है बेटा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पहले किया हुआ है। आई जस्ट चेक इट।
I hope you can see it now. ठीक है, question number 8 I'm talking about. You have to give me your answers as you have done this thing with me, exactly this thing with me. पूरा सब पता है आपको इसके बारे में, तो I want the answer, correct answer. नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज टू आइसोटोप्स, ठीक है ना, दो आइसोटोप्स हैं 79 और 81 के, और इसका मास जो है एवरेज दैट इज 80। ये आपने किया हुआ है बेटा मेरे साथ। तो व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ओनली। बेटा ये सवाल इस तरीके का है कि ये आपसे जो बाकी चीजें पूछ रहा है, जो एक ऑप्शन सही है उससे हटके, वो बातें आपको शायद इस इंफॉर्मेशन से पता नहीं चल सकती हैं। इसलिए द आंसर क्वेश्चन सेज फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ओनली। तो जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे क्या पता चल रहा है, उससे हमें सिर्फ क्या पता चल सकता है, दैट bromine contains the two isotopes in equal proportions. Hamna gave us the answer A, which is the correct answer. क्योंकि बेटा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इस इंफॉर्मेशन से मुझे ये नहीं पता चल सकता कि ब्रोमीन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि नहीं। मुझे उसका बस एवरेज मास बता दिया और दो आइसोटोप्स के मासेस बता दिए, और ये बता दिया कि उसका एवरेज मास 80 आ रहा है, मतलब। तो इस बात से मुझे तो नहीं पता चलेगा कि भाई ये रेडियो एक्टिव है कि नहीं। हो सकता है हो सकता है ना हो, बट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। सर आपकी इंक्वायरीज